Hello students, today's lecture is based on light and this is the lecture of subject physics class 10. So previous lecture में I have already going with the topic numericals which is in your book NCERT chapter 11. So in previous lecture we have discussed about question number 12. So today we will start with the question number 13. In question number 13 written that the magnification produced by a plane mirror is +1. What does this mean? That means magnification m equals to +1. This is given. And we know that m equals to minus v upon u for mirror. This is the magnification formula for the mirror. And then according to this formula, v upon u, that is equal to, there is written +1. In this case v equals to u because at this side. इस स्टेटमेंट से ये हमको पता चलता है कि शायद यहाँ पर जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के। अदरवाइज यहाँ पर राइट कर सकते हैं m इक्वल्स टू i अपॉन o and the value of m is given 1 in the question and equals to i upon o, where I equals to height of image and o equals to height of ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ से आपको क्वेश्चन में m इक्वल टू 1 गिवन है, दैट इज द फार्मूला i अपॉन o। सो यहाँ से आप राइट कर सकते हो i इक्वल टू o। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन height of image that is equal to height of object, height of ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपको +1 गिवन है। सो यहाँ से आप राइट कर सकते हो m इक्वल टू i अपॉन o, दैट इज द फार्मूला फॉर द मिरर। एंड सो फ्रॉम दिस फार्मूला यू कैन राइट हियर put the value of m equal to 1 which is given in your question and i upon o, that is the formula. So from this you can write it as i equals to o. I means height of the image and o means height of the object. सो क्वेश्चन नंबर 13 का जो मीनिंग है वो ये है कि अगर किसी भी मिरर का, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन 1 है, इसका मतलब है कि वहाँ से जो इमेज का हाइट होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा किसके, ऑब्जेक्ट की हाइट के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 it states that an object 5 cm in length is placed at a distance of 20 cm in front of a convex mirror of radius of curvature 30 cm. Find the position of the image and its nature and size. So what the values are given right here. First, height of object, that is o, equals to 5 centimeter. Next, ये जो ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर कन्वेक्स मिरर के फ्रंट में, दैट मीन्स u इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। सो u की वैल्यू ऑलवेज इसमें हम लोग राइट करते हैं निगेटिव में। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल्स टू गिवन है आपको 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर एक कन्वेक्स मिरर है, सो यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव। सो यहाँ से फोकल लेंथ जो होगा वो होता है जस्ट हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट
इज इक्वल टू 30/2 इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर. नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू calculate the position of the image. So for mirror, formula is 1/f that is equal to 1/v plus 1/u. Now if we want to calculate the value of v, then we can write this formula as 1/v equals to 1/f minus 1/u. अभी इसमें हमने कुछ किया नहीं है, बस इसी फॉर्मूले को रीअरेंज किया है. सो पुट ऑल देयर वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. 1/v इक्वल्स टू 1/f. f के प्लेस पर राइट करना है 15 एंड माइनस द वैल्यू ऑफ u इक्वल्स टू -20. सो यहां पर 1/-20. सो 1/v दैट इज इक्वल टू 1/15 एंड माइनस will become positive and upon 20. So 1/v that is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. So 20 plus 15 upon 300. So that is equal to 35 upon 300. And now v equals to 300 divided by 35. You can cut this value with digit 5. So 5 7 is 35 and this will be cancelled by 60. So v equals to 60 upon 7 centimeter. This is the position of the image. अभी यहाँ पर अगर रे डायग्राम if we want to draw, then question में बोलता है this is the convex mirror. So draw the convex mirror and this is the principal axis, and if we are supposing here this is the focal length, just double radius of curvature, and right here center of curvature C. Now there is written that the object which placed in front of mirror by 20 centimeter distance. 15 इसका फोकल लेंथ है, तो ये जस्ट 20 से थोड़ा सा ज्यादा. यहाँ पर ऑब्जेक्ट है AB और अब करना क्या है, फर्स्ट रे ऑफ लाइट पास होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट सीम्ड टू बी इट पासेस थ्रू फोकस. ओके, नेक्स्ट आपको कहां से पास करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से. सो यहां से मैंने ऐसे राइट किया और ये ऐसा हम लोग सपोज करेंगे कि कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से. सो ये जिस वे पाथ को फॉलो करते हुए रे ऑफ लाइट जाएगी उसी पाथ को फॉलो करते हुए रिटर्न हो जाएगी. सो आप यहां चेक कर पाएंगे देयर इज अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सो इमेज विल बी फॉर्म्ड हियर. सो यू कैन draw the रे डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन एंड यहाँ पर आपको जो पोजीशन मिलना है v इक्वल्स टू 60/7 सेंटीमीटर आपको मिल गया है. तो ये आपका आंसर फर्स्ट ये है. नेचर आपको यहाँ से मिलेगा, नेचर आपको यहाँ से ये मिलना है. इस क्वेश्चन में पूछा है कि साइज एंड नेचर पूछा है, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको साइज फाइंड आउट कर लेते हैं. साइज में m इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा v/u ऐसा, एंड यही इक्वल्स टू होता है माइनस साइन के साथ i/o. So minus v/u that is equal to i/o, where minus v की वैल्यू कितनी है 60/7. So 60/7 whole upon the value of u equals to -20. So write here -20 i/o. The value of height of the object is 5. So write here 5. माइनस से माइनस ये नेगलेक्ट हो जाएगा. So यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं 60/7 into 20 that is equal to i/5. 23 is 60. So 3/7 that is equal to i/5. So I equals to 15/7. So this value will approx 7 to the 14 2.1. इसका जो हाइट होगा इमेज का वो नियर अबाउट कितना होगा
2.1 सेंटीमीटर। सो आप चेक भी कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का हाइट 5 सेंटीमीटर है एंड इमेज का साइज कितना है 2.1। इसका मतलब है कि द साइज ऑफ द इमेज विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 14 आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करने के लिए चलेंगे तो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को कंटिन्यू करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे एंड देन वी विल गो टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। देन यहां पर हाइट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज डिनोटेड बाय O इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ओके, is placed at 20 cm in front of concave mirror। अब B की बात जो है वो कौन सा मिरर है, concave मिरर है। इससे कितने डिस्टेंस पर, 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। तो यहाँ पर साइन कौन सा रहेगा, माइनस का। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ ऑफ द concave mirror is negative, so write here minus 18 centimeter। Then the question asked to us at what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained। कितने डिस्टेंस पर स्क्रीन को रखा जाए जहां पर हमको क्या मिलना चाहिए, इमेज मिलना चाहिए। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। सो यहां से आपको मिल जाएगा फॉर्मूला फॉर द मिरर 1/f इक्वल्स टू 1/v एंड प्लस 1/u, बट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v। So we can rearrange this formula 1/v equals to 1/f minus 1/u। Now put all these values which is given in the question। So write here 1/v that is equal to 1/f। The value of f is minus 18, so write here minus 18 and also take here minus sign because in this rearrangement there is a negative sign। So minus sign and 1/, the value of u equals to minus 27, so write here minus 27। okay, now we can write here 1/v that is equal to minus 1/18 and minus 1/, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 27। इसका एलसीएम हम लोग राइट कर सकते हैं। ओके, एलसीएम कैसे राइट करते हैं, सपोज दैट फर्स्ट है 18, सेकंड है 27। इसका आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, 2 9 जा 18 एंड इसको 27 ही रहने दो। फिर यहां से 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 एंड 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। सो यहां से आपको मिलेगा कितना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 2 जा कितना हो जाएगा 54। सो यहां से आपको राइट करना पड़ेगा 1/v इक्वल्स टू एलसीएम आपका यहां पर कितना हो गया 54। 18 से डिवाइड करेंगे 54 को तो आएगा 3 टाइम्स। सो यहां पर -3 प्लस 27 को अगर यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। ओके, सो यहां पर 1/v दैट इज इक्वल टू -1/54 और ये वैल्यू किसमें होगी, सेंटीमीटर में। So the value of v equals to -54 centimeter। That is the position of the image। अभी ये पोजीशन ऑफ द इमेज आपको मिला है, यहाँ पर वैल्यू आप देखो तो यहाँ पर नेगेटिव है। एंड नेक्स्ट आपको क्या मिलना है, साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज को फाइंड आउट करने के लिए I/O that is equal to -v/u। So right here, अदरवाइज इसको डायरेक्टली भी आप राइट कर सकते हो, यहाँ पर माइनस साइन लेने का कोई मतलब नहीं है। सो यहाँ पर i की वैल्यू कितनी है वो फाइंड आउट करना है, वो कितना है 7 है। सो I/7 दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ v इज 54 एंड द वैल्यू ऑफ u इक्वल्स टू 27। सो I इक्वल्स टू 7 into 7 27 to the 54। So write here 2 that is equal to 14 centimeter। Now you can check that then the height of object is 7 centimeter but the height of the image 14 centimeter। So you can say that the size of the image is greater than the size of the object। So यहाँ से you can write here size of the image is greater than the size of the object। That is the second part of this question।
सो नेचर यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट यहाँ पर आपको पॉइंट मिला, सेकंड ये मिल गया। अभी आपको नेचर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। रे डायग्राम को बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जितनी भी वैल्यू है उसको पुट करना है एंड देन वी कैन फाइंड द in the question there is given that there is a concave mirror and write the principal axis and focal length is 18. So write here focal length 18 and just double center of curvature C. Okay, this is the focus. Now यहाँ पर आपको जो मिला है 27 सेंटीमीटर पर, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट को इसके बीच में रखा गया है C एंड F। कैसे पता चला? बिकॉज यहाँ पर फोकल लेंथ कितना है 18 है, सो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा -36। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ तक का होता है, बट यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 27। इसका मतलब है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर से पहले ही ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। सो मैंने यहाँ पर राइट किया कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से ज्यादा है बट रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम है, इसलिए जो पोजीशन ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट है वो C एंड F है, बिटवीन C एंड F। So first वर्क आपको क्या करना है, draw the line ray of light parallel to the principal axis, then it will pass through the focus. Next you can pass the ray of light through the focus and after the reflection from mirror it will be parallel to the principal axis. So जहां पर ये दोनों ray of light एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे at this point इमेज विल बी फॉर्म। अब आप चेक कर सकते हैं कि जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो इतना है एंड हाइट ऑफ द इमेज थोड़ा सा ज्यादा है। सो यू कैन चेक हियर नेचर। यहाँ पर इस क्वेश्चन का अगर फाइंड आउट करना है तो नेचर में क्या राइट करोगे आप, ये रियल का इमेज है, रियल इमेज एंड ये उल्टा है, उल्टा को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड। ये हो गया नेचर। सो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।